Assalamu alaikum dear students. Let us continue the exercise of unit number 2 Chinese New Year. Today's segment is that of grammar, and the grammar we are given the introduction of collective nouns. In the first unit we had done two nouns, concrete noun and abstract nouns. Now today another kind of noun is given, that is collective noun. What is collective noun? Collective noun is the name of group of persons or collection of things taken as a unit. Group of persons and collection of things taken as a unit. अब क्या हो गया, अफराद का मजमुआ या अशिया का मजमुआ, जिसको हम एक यूनिट के तौर पे, इकाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड आर्मी. आर्मी इज़ अ सिंगल वर्ड but it represents many soldiers. It consists of large group of soldiers. One soldier cannot form an army. So word army represents a group of people, group of soldiers. In the same way, the word team. Now a team consists of many players, a number of players. One player cannot form a team. A team is consisted of a lot of players. In the same way, class, the word class. One student cannot form a class. A class is consisted of a lot of students, a group of students. So the words team, class, audience, crowd, family, army, committee, these words are called collective nouns as they represent more than one person or more than one thing. Now let us come to the exercise. Question A. Fill in the blanks with the correct collective nouns. The first is it is typical for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. It is typical for a Chinese family. Chinese family, number 1. Number 2, the dash applauded heartily at the end of concert. The dash applauded heartily at the end of concert. कॉन्सर्ट के एंड पे, कॉन्सर्ट होता है मौसीकी की महफिल, उसके एंड पे डैश ने जो है वो दिल से दाद दी. अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑडियंस, द ऑडियंस ने दिल से दाद दी. नेक्स्ट इज द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. द क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. अभी अभी क्लास ने फिज़िक्स का सबक पढ़ा है. नंबर 4 इज़ द डैश ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब जो है वो रॉबर्स का जो मजमुआ है वो मॉब की सूरत में हो सकता है, वो गैंग की सूरत में हो सकता है, वो क्राउड की सूरत में हो सकता है. अगर पॉजिटिवली लेंगे तो क्राउड होगा, अगर नेगेटिव है जैसे रॉबर्स हैं, टेररिस्ट हैं, तो उनका गैंग होगा. सो द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. Number 5 is a dash of people gathered at the accident site. A crowd of people gathered at the accident site. अफराद का जो हजूम था, लोगों का जो हजूम था, वो एक्सीडेंट की मंजर पे, जगह पे इकट्ठा हो गया. Number 6 is the dash took many important decisions at its monthly meeting. अब डिसीजंस कौन लेता है ना, मीटिंग में डिसीजंस कौन लेता है, अथॉरिटी किसकी होती है, कमेटी की. The committee took many important decisions at its monthly meeting. Number 7 is the dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. ठीक है. अब जो है वो डैश ऑफ पाकिस्तान फोर्स के जो अमला है वो अपने यूनिफॉर्म में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था. सो अमला जो है, जो उनके मेंबर्स जो हैं, उनको बोलेंगे क्रू. नाउ लिसन अगेन. Chinese family, the audience, the class, the gang of robbers,
the crowd of people, the committee, the crew of Pakistan Air Force. The next segment is that of use of must or must not, mustn't, must not. Okay, what's the use of must? As it is given strong obligation. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ की, किसी काम की पुरजोर तायीद करना, ताकीद करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर्स डे, कि हर सूरत में तमाम तरह की सफाई का काम साल नौ से पहले दिन मुकम्मल हो जाना चाहिए। ओके, मस्ट नॉट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ममानियत, ममानियत होता है किसी बात से मना करना, कोई काम करने से रोकना। द एग्जाम्पल हेयर इज मदर। व्हाट डज द मदर से? मदर सेज यू मस्टंट प्ले विद द मैचेस, आपको मैच बॉक्सेस के साथ नहीं खेलना चाहिए। सो मस्ट इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव पर्पस एंड मस्ट नॉट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट from something, to prevent from something. Now the exercise given here is B. Fill in the blanks with must or must not. The first is she dash eat so much sugar. So much sugar. उसे बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। She must not eat so much sugar. Prohibition. Students dash pass on entrance examination to study at the school. अब इस स्कूल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल। सेंटेंस नंबर 3, यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन, तुम्हें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। नाउ नोट, in the first sentence there was used so much, and so much is also used in sentence number 3. You must not watch so much television. Sentence 4, he dash take some medicine for that cough. He must take some medicine for that cough. उसको खांसी के लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। Visitors dash smoke. Visitors must not smoke. So for a strong prohibition we use must not, and for obligation we use must. The next segment is the use of tense, present indefinite tense and present continuous tenses. Make the present indefinite and present continuous sentences. Now we have to make either present indefinite or present continuous sentences according to the given situation. Now note one thing. If every day, sometime, daily, usually, generally, often, seldom, each day, every day are included in the sentences, they are corrected in present indefinite tense. If today, at this time, nowadays, present days, and now are included in the sentences, those sentences are corrected in present continuous tense. ठीक है, दोबारा से सुन लें। अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली, एवरी डे, ईच डे, डेली, समटाइम्स, जनरली हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेक्शन करते हैं, और अगर किसी में एट प्रेजेंट, नाउ आर डेज, दीज डेज, टुडे, नाउ हो तो हम उसकी करेक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। सो एवरी टेंस हैज़ सम सिग्नल वर्ड्स। नाउ look at the sentences shown on your screen. The first is, you not like dash chocolate. You do not like chocolate. You do not like chocolate. Likes and dislikes are included in present indefinite tense. She not study dash the moment. At the moment is
सिग्नल फ्रेज फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इस टाइम वो पढ़ नहीं रही है. शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. दे नॉट ईट dash rice every day. Every day is a single signal word for present indefinite tense. The sentence is negative. They do not eat rice every day. We not work dash now. Now is a signal word for present continuous. हम अब काम नहीं कर रहे हैं. We are not working now. It rain dash a lot here. यहाँ पे बहुत बारिश होती है. तो रूटीन को शो किया जा रहा है. रूटीन इज ऑलवेज शोन बाय द यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट रेन्स अ लॉट हियर. आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो. कल मैं एक छुट्टी पे जा रहा हूँ या मैं कल छुट्टी पे जाने वाला हूँ. जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ. The use of present continuous tense. I am going on a holiday tomorrow. Now listen again. You do not like chocolate. She is not studying at the moment. They do not eat rice every day. We are not working now. It rains a lot here. I am going on holiday tomorrow. The exercise of unit number 2, Chinese New Year, is over here. We are not supposed to do the rest of the exercise or the rest of the skills. This is paragraph number 4 on your PTB. Let us translate it into English. डर है. इस तरह के सेंटेंसेस जैसे डर है, उम्मीद है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. डर है. It is feared. FEARED. It is feared. Yeah, there is fear. डर है. It is feared या there is fear कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा. That oil of the world, दुनिया का तेल, oil of the world हो जाएगा. Use of future indefinite tense. Oil of the world will. अब ख़त्म होने की इंग्लिश होती है end. लेकिन जब किसी चीज़ का ज़ख़ीरा ख़त्म होता है तो उसकी टिपिकल इंग्लिश होती है रन आउट. ख़त्म हो जाना किसी भी रिज़र्व का, किसी भी ज़ख़ीरे का, तो रन आउट. नाउ लिसन. इट इज़ फियर्ड दैट ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट चंद साल बाद. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. इट इज़ फियर्ड दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है. यूज़ ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हर मुल्क, एवरी कंट्री, कर रहा है, कोशिश कर रहा है. इज़ ट्राइंग. हर मुल्क कोशिश कर रहा है. एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग. अब क्या कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे. हम इसको टू से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को. ज़ख़ायर होते हैं, ज़ख़ीरे होते हैं, रिज़र्व, और दरियाफ़्त करना होता है डिस्कवर. तेल, ऑयल, और मज़ीद हो गया मोर. एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे. मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. मालूम नहीं. इट इज़ नॉट नोन. मालूम नहीं. इट इज़ नॉट नोन, या आप ये भी कर सकते हो वी डोंट नो. मालूम नहीं. इट इज़ नॉट नोन कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. किस हद तक. हाउ फार. अब हाउ फार होगा, नीचे वोकैबुलरी में दिया हुआ है हाउ फार. FER फॉर. हाउ फार ये कोशिश, दिस एफर्ट, कामयाब होगी, विल सक्सीड. इट इज़ नॉट नोन हाउ फार दिस एफर्ट विल सक्सीड. ज़रूरत इस बात की है. ज़रूरत इस बात की है अब दो तरह से. पहले तो ये कि द नीड ऑफ आवर इज़ डैट. द नीड ऑफ आवर, अब जी जो आवर HOUR, द नीड ऑफ आवर इज़ डैट, या इट इज़ द नीड ऑफ आवर.
द नीड ऑफ आवर इज़ डैट कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। जब आपके सेंटेंस में हो ना ये करें और ये ना करें, तो उसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं शुड की सूरत में। तेल की ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स। अब कम करने की इंग्लिश होती है रिड्यूस। लेकिन जब किसी चीज़ की कंजम्पशन को कम करना है, आपने कंजम्पशन को, तेल की कंजम्पशन को कम करना है, तो उसकी इंग्लिश होगी कट शॉर्ट। नाउ लिसन, द नीड ऑफ आवर इज डैट वी शुड कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स। सनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। सनत इंडस्ट्री, ज़राअत एग्रीकल्चर, और खपत होता है इस्तेमाल, सर्फ को बोलते हैं कंजम्पशन। कम करना हो गया रिड्यूस, मिनिमाइज भी हो सकता है। ओके, नाउ लिसन, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, तेल की खपत को, इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ज़राअत व सनत में कम नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिड्यूस। अलबत्ता निजी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। अब जा सकना कैन की फॉर्म में होगा। निजी ज़रूरतें होती हैं प्राइवेट नीड्स, और अगेन इस्तेमाल यूज़, और यहाँ पे फिर रिड्यूस के मायने में आ जाएगा, या आप वोकेबलरी चेंज करें तो बेहतर इंप्रेशन पड़ता है, यहाँ पे लेस के मायने में आ जाएगा। अलबत्ता, हाउएवर, निजी ज़रूरियात हो गया प्राइवेट नीड्स, हाउएवर, कॉमा, द प्राइवेट नीड्स किया जा सकता है कैन बी, हाउएवर द प्राइवेट नीड्स कैन बी, कम लेस, कम करना लेसन, LESSEN, कम करना लेसन। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म में आ रहा है कैन बी लेसन्ड, LESSENED, पैसिव फॉर्म में है इसलिए लेसन्ड आ जाएगा, फुल स्टॉप। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। हमें चाहिए, वी शुड, बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट करना कहते हैं। कार की इंग्लिश कार हो गई, और बस की इंग्लिश बस हो गई, और जगह किसी चीज़ की जगह तो इंस्टेड ऑफ। ओके जी, हमें चाहिए वी शुड इंपोर्ट, दरामद करना चाहिए बसेस को। वी शुड इंपोर्ट बसेस, कारों की जगह यानी कारों की बजाय, इंस्टेड ऑफ कार्स। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके, कैन बी, ताकि, सो डैट, बसों की सहूलत, बस फैसिलिटी, बेहतर बनाना, इम्प्रूव भी आ सकता है, और मेक बेटर भी आ सकता है, इम्प्रूव कर ले। नाउ लिसन, वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स so that the bus facility for students may be improved.